નમસ્કાર, ડે સ્પેશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું પાર્થ મોદી. દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં આજે એક એવા મુદ્દા ઉપર વાત કરવી છે જે મુદ્દો ક્યાંક વર્ષોથી એક ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે અને એ મુદ્દાને લઈને યુનાઇટેડ નેશને પણ પોતાની ગંભીરતા દાખવીને પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ ઘણી વખત આપતું રહ્યું છે અને એ હંમેશા એ પક્ષમાં રહ્યું છે કે જે શરણાર્થીઓ છે એમને કેવી રીતે પ્રસ્થાપિત કરી શકાય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. કારણ કે કુદરતી આપદા હોય કે પછી યુદ્ધની પરિસ્થિતિની વચ્ચે માનવ જીવન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે પરિવહન કરતું હોય છે કે સ્થળાંતર કરતું હોય છે ત્યારે પોતાના દેશ છોડીને બીજા દેશમાં જવું પડે એટલા માટે ચોક્કસથી એક શરણાર્થી તરીકે એમનું ત્યાં સ્ટેટસ લાગે, એટલે કે રેફ્યુજી તરીકેનું એક સ્ટેટસ લાગે. અને આ રેફ્યુજી તરીકે ઘણી વખત દેશ એને સ્વીકારતો પણ હોય છે ને ઘણા દેશો નથી પણ સ્વીકારતા હોતા. આ પરિસ્થિતિ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કારણ કે દરેક દેશ પોતપોતાની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને આધારે ચાલતો હોય છે ને એવામાં કોઈ પરિસ્થિતિના આધારે તમારા ત્યાં રેફ્યુજી તરીકે કોઈ શરણાર્થી સ્થળાંતર થઈને આવ્યું છે તો એવામાં શું કરવું સરકાર પોતે પણ વિચારતી હોય કારણ કે એના લોકો એની પ્રજાનું પણ એને ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. આ બધી વસ્તુઓ છે અને આ જ વસ્તુઓને લઈને ચર્ચા કરીશું કારણ કે 20મી જૂન વિશ્વ શરણાર્થી દિવસ તરીકે જ્યારે યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા ઉજવવાનું નક્કી થયું છે અને આપણે વિશ્વ શરણાર્થી દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. એક શરણાર્થી તરીકે શું શું લોકોને તકલીફ પડતી હોય છે, સાથે સાથે દેશ જ્યારે આપણે રશિયા યુક્રેનની વાત કરીએ કે યુદ્ધ થયું એવામાં યુક્રેનના ઘણા લોકોએ સ્થળાંતર કર્યું, પોલેન્ડમાં ગયા, આજુબાજુમાં અલગ અલગ દેશમાં ગયા તો ત્યાં આવકાર મળ્યો પણ ઘણા દેશોએ ના પણ પાડી કે ના અમે સ્વીકારીશું નહીં. આ પરિસ્થિતિ આવતી હોય છે. જેમ કે ભારતની વાત કરીએ તો ભારત પાકિસ્તાનના જ્યારે ભાગલા પડ્યા એમાં એક શરણાર્થીનો એક મુદ્દો સૌથી મહત્ત્વનો આવ્યો. સિંધી સમાજ જે ભારતમાં આવ્યો એને કેવી રીતે આવકાર મળ્યો, શું એ સમય ગયો, સાથે કાશ્મીરી પંડિતનો એક વિવાદ સતત હંમેશા સળગતો રહ્યો છે. ભારત દેશની જો વાત કરીએ તો ભારત દેશ અને કાશ્મીરની અંદર જે કાશ્મીરી પંડિત સાથે જે અન્યાય થયો એ પણ આપણે સૌ કોઈએ અલગ અલગ માધ્યમોથી ક્યાંક વાંચ્યું છે તો ક્યાંક મીડિયાના માધ્યમથી જોયું છે તો ક્યાંક મનોરંજનના માધ્યમથી એ ફિલ્મો આપણે નિહાળી છે. એટલે આ પરિસ્થિતિ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ લેવલે હોય છે. આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે. ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે તુલસીભાઈ ટેકવાની, જેઓ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. તુલસીભાઈ, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. તુલસીભાઈ જી નમસ્તે. સાથે આપણી સાથે કાશ્મીરી પંડિત ભરતભાઈ બામરૂ આપણી સાથે જોડાયા છે. ભરતભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર. તુલસીભાઈ, આપનાથી શરૂઆત કરીએ. તુલસીભાઈ, જે ભાગલા પડ્યા ભારત પાકિસ્તાનના જે ભાગલા થયા ને એ પરિસ્થિતિ ઘણા લોકો માટે એક કપરી પણ રહી છે કારણ કે પંજાબનો એ ઇલાકો હતો, સિંધનો ઇલાકો હતો, ત્યાંથી કેટલાક લોકો પાકિસ્તાન તરફ ગયા, કેટલાક લોકો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે એક સિંધી સમાજની જો વાત કરીએ તો કેવી પરિસ્થિતિ રહી? શું સિંધી સમાજે જ્યારે સ્થળાંતર કર્યું તો ભારત દેશમાં કેવો આવકાર મળ્યો? નમસ્તે. તમારી રજા अनुमति साथे हूँ हिंदी में बात करवा मांगीश. जी 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 जी. तो नमस्कार. देखिए, सिंधी समाज जिसको कि सामान्य रूप से अनेक लोग शरणार्थी बोलते हैं, लेकिन सिंधी समाज 14 अगस्त को जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय यहाँ आया. हम जितना सिंधी समाज था वो हिंदू, जो पाकिस्तान, जो अखंड भारत था, अविभाजित भारत था, वो समाज यहाँ स्थानांतरित होकर के आया. तो न हम शरणार्थी थे, लेकिन समय के अनुरूप से हमें यहाँ शरणार्थी के रूप में माना गया. लेकिन हमारा देश था, हम हमारे देश में ही आए थे. एक सिंधी समाज तो एक ऐसा अनूठा समाज है जिसने सब कुछ खोकर के भी यहाँ आने के बाद में अपने को हर प्रकार से, अपने परिश्रम से, अपने अथक साहस से, व्यापार में, पूरे देश में जहां जहां ऐसा लगा कि हमारा परिवार की रोजी रोटी सेट हो सकती है, तो हमारी जो वो पीढ़ी थी उसने ऐसा निर्णय लिया कि मुख्य रूप से कहें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वहां सिंधी समाज, और गुजरात तो है ही, यहाँ सिंधी समाज अधिक रूप से एकत्रित हुआ. लेकिन आने के बाद में अन्य समाज का ने किस रूप में लिया, वो तो हमारा जो देश है
वो देश इतना, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा हो, उसमें हम हर आने वाले को समाहित करते हैं। तो इस देश की अपनी एक, क्या कहें, विशेषता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति स्थानांतरित होकर के आता है, उसको इस चीज का एहसास भी नहीं होने देते कि आप शरणार्थी हो। उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे, वो एक मुख्य बात रहती है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जहां भी है, उसमें सबसे विशेष बात हमारे देश की जो संस्कृति की बात है, उसमें हम हर जगह समाहित हो गए। इस प्रकार से जैसे दूध में चीनी के रूप में समाहित हो जाते हैं, बिल्कुल। वैसे समाहित हो गए। तो सबसे सुंदर बात क्या थी कि किसी अन्य समाज ने हमको इस चीज का ऐसा नहीं एहसास किया, कराया कि हम कहीं से आकर करके यहाँ बसे हुए हैं। तो उन्होंने हमको अपना हिस्सा माना, हमारी गरिमा को बनाए रखने दिया। और उस शरणार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती भी ये है, कोई भी शरण लेने के लिए किसी देश में तब जाता है वो जब अपने देश से प्रताड़ित होकर के, या ऐसी स्थिति आती है कि उसको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अन्यथा कोई भी कहीं शरण लेने के लिए नहीं जाता। तो जब वो शरण लेने के लिए जिस स्थान पे आता है, और उस स्थान पे यदि उसके साथ व्यवहार में, आचरण में, वाणी से यदि अन्य समाज यह बताएगा कि वो जैसे हमारी शरण में आया है, शरण में आया है, ये भाव उसको कभी आना ही नहीं चाहिए। हम समकक्ष हैं, एक दूसरे के समान हैं। यह भाव पूरे देश में सिंधी समाज के साथ तो रहा ही। मैं एक चीज यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि शरणार्थी दो रूप में होते हैं। एक अपने देश से प्रताड़ित होकर के अपने धर्म रक्षा नहीं कर पा रहा हो, जी। अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा हो, तो वह किसी दूसरे देश में शरण में जाता है। या युद्ध के शरणार्थी होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं इजराइल और अ, पैलेस्टीन। गाजा जी। में, या यूक्रेन और रशिया में देख रहे हैं। तो युद्ध के शरणार्थी हैं, तो वो विवश होकर करके जा रहे हैं। लेकिन शरणार्थी के आडंबर में यदि कुछ लोग कुछ विशेष हेतु से आते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार है, वो हमारे देश में तो चूंकि हमारा व्यवहार इतना है कि हम उसको वेलकम कर रहे हैं, तो उसका जो हमारी समाज को, देश को, सरकार को सजग रहना चाहिए कि कोई विशेष हेतु से यदि इस अम, बहाने से, या अंडर द शेल्टर ऑफ दिस वार और अदर थिंग, वो यदि आकर के इस देश के संसाधनों को या अपना कोई एजेंडा सेट करना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग बिल्कुल सोच होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल। शरणार्थी हमारे देश में उनका स्वागत होता है, इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास साक्षी भरत जी, जैसे कि बात करें कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की ये भावना रही है, और हमारे देश ने हमेशा रेफ्यूजी को एक जगह दी है, एक पनाह दी है, और एक घर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि बात करें, तुलसी जी ने जैसे पूरी बात बताई, पर क्या परिस्थिति रही कश्मीर में, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित हो, क्योंकि और वहां के हालात कैसे थे, क्योंकि आज के दिन पे ये बात करना जरूरी है, क्योंकि दर्शकों को भी जानना चाहिए कि क्या हालात से गुजरे हैं एक हिंदुस्तानी अपने ही देश में। कई बार ऐसे ऐसी हालत हुए कि हमें एक जगह से छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो क्या क्या पूरा एक कश्मीरी पंडित के हिसाब से रहा है वहां पे? आज मैंने सोचा था कि मैं आज जो ये रिफ्यूजी वर्ड है इसको आज मैं डिफाइन कर दूं। जी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे मित्र ने जो मेरी विडंबना है, जो मेरे विचार थे वो उन्होंने बोल दिए। एक्चुअली हम लोग चाहे ये अपना दो, हम जो कश्मीरी पंडित है या सिंधी समाज है, हम लोग रिफ्यूजी अपने ही देश में हमको कहा गया है। ये एक विडंबना है इस देश की कि ये बिल्कुल। कॉइन किया हुआ ये वर्ड है कि भाई
रिफ्यूजी। एक्चुअल रिफ्यूजी होता है कि जो दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में आए। लेकिन अब अब 35 साल हमें भी हो गए कश्मीर से निकले हुए। कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन फिर भी हमको रिफ्यूजी कहा जाता है। और हम लोग जब निकले थे, ये कोई सोच के नहीं निकला था, या कोई किसी के माइंड में ये नहीं था कि कितने दिन के लिए जाना था। हमको लग रहा था कि 2 महीने 3 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे। आज कंप्लीट 35 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग ही हैं, चाहे सिंधी समाज हो या हमारा कश्मीरी समाज हो, जिन्होंने सरवाइव किया। हम लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से या अपने अपने रिलेशन के माध्यम से हम लोगों ने सरवाइव किया। आज अगर सिंधी समाज को भी आप देखोगे, इकोनॉमिकली कितना ये अपना देश या स्टेट के मतलब इकोनॉमी में इनका कितना योगदान है, उसी तरह हम लोगों का। और हम रहे हैं शांति प्रिय। आप कहीं नहीं बिल्कुल देखेंगे कि एक चीज कॉमन है हमारे दोनों समाज में, ज्यादा आपको वायलेंस नहीं मिलेगा। और हमारा तो बिल्कुल सही बात है। वैसे भी हमारा रिकॉर्ड है। अब आप कहीं पे भी हमको देखिए, हमको हमको गुजरात ने भी अपनाया, हमको किसी भी राज्य ने अपनाया, लेकिन दिल में तो ये है कि भाई हमको रिफ्यूजी अपने देश में क्यों कहा जा रहा है। ये एक डिबेटेबल है। और मुझे आज अच्छा लगा, जबकि ये है तो गुजराती कार्यक्रम, लेकिन मेरे जो मित्र हैं इन्होंने हिंदी में बोलना, ग्लोबली पता चले कि हमारी विडंबना, हमारे हमारे जो इश्यूज है, हमारे जो प्रॉब्लम है, ये ग्लोबली लोगों को पता होना चाहिए। और अब हम उसके लिए पूरा ये करते हैं, डिवोट करते हैं हम लोग पूरा ग्लोबली। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी हमारे बाहर रहते लोग, बताया जाता है कि भाई वो वहां पे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये एक त्रासदी थी जिसके लिए 90 के दशक में हमको निकलना पड़ा। अब बिल्कुल रही बात आज की, हम बात करेंगे। आज हम यहाँ पे है। मैं अगर गुजरात की बात करूंगा, तो जी। गुजरात ने हमको एक्सेप्ट किया, हमने गुजरात को एक्सेप्ट किया। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसको हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। आप पॉजिटिव सेंस में देखते हो, ये तो बात सही है। और जैसे कि अगर बात करें तुलसी जी, जैसे कि बात करें कि भारत सरकार, जो अभी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार ये कोशिश कर रही है कि सीए लाए कि फिर ये जो चीज है कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर ये बांग्लादेश है, उसमें जो हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं उनको नागरिकता देने की जो बात है, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि ये नागरिकता अगर रेफ्यूजी की जो वहां पे, जैसे कि आपने बताया कि शरणार्थी दो तरीके से होते हैं कि युद्ध जैसी त्रासदी हो, वहां से निकलना होता है तो शरणार्थी होते हैं, या कभी कभी जो धर्म आधारित, वो अपने आप को नहीं संभालने शक्तिवान नहीं होते और फिर निकलते। तो क्या लगता है गवर्नमेंट का ये स्टेप कितना बड़ा होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू लोग आ रहे हैं, जो अल्पसंख्यक, वहां के अल्पसंख्यक। हाँ जी, भरत भाई आपका धन्यवाद। आपने अच्छी तरह से सिंधी समाज के बारे में भी इतना अध्ययन है आपका। मैं सीए के बारे में कहूँ उसके पहले आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। जी जैसे हम 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका दिवस है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले ये कहा कि यह कोई जो स्वाधीनता का 15 अगस्त का दिन है, वो जितनी खुशी देता है, उसके साथ साथ 14 अगस्त की जो विडंबना है, जो विभीषिका है कि हमारा देश का विभाजन हुआ, और उसके जो वास्तविक रूप से यदि कोई भुक्तभोगी थे तो वो हमारा समाज था। पंजाब को पंजाब मिला, भले आधा मिला, बंगाल को बंगाल मिला, भले आधा मिला, लेकिन एकमात्र सिंधी समाज ऐसा था जिसको बाकी सब कुछ था लेकिन सिंध प्रांत नहीं मिला, कोई नहीं। भूमि नहीं थी। लेकिन फिर भी जब हम आए, तो जैसे भरत भाई ने कहा कि हमें हमारे ही देश के अंदर शरणार्थी के रूप में कई जगह बोला जाता था, लेकिन मैं उन शिकायत या उन बातों में नहीं, मेरा अर्थ है कि भाई हम आए, हम रिफ्यूजी कैंप में रहे, हमको जो कैबिन्स आज भी जो 75 साल पहले कैबिन्स मिली, कच्ची कैबिन, जिनके ऊपर
रेंटेड है, उनका मालिकाना हक नहीं है, ऐसे मकान हैं। और सब जगह आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर, जो मुख्य रूप से मैंने अभी आपको थोड़ा समय पहले बोला कि 5 या 6 प्रांत हैं जहाँ सिंधी बाहुल्य है, ऐसे तो सिंधी पूरे देश में बिखरे हुए हैं। और एक सिंधी की इसी बीच में मैं और कह दूं कि एक इतनी विशेषता है कि जितनी लोकल, मैं तो चूंकि राजस्थान से माइग्रेट होकर करके गुजरात में आया हुआ हूँ, इसके लिए मेरा गुजराती भाषा पर वैसे व्यक्तिगत भाषा में उतना ही कमांड है, लेकिन ऐसे इस प्रकार के शो पे उस रूप में नहीं बोल सकते। लेकिन जो गुजरात में सिंधी रहता है उसका उतना ही गुजराती पे कमांड है। तमिल में रहने वाले सिंधी का तमिल में, माने यहाँ की हर भाषा पे जो जिस प्रांत में रहता है वो वहां उसी रूप से समाहित हो गया है। ये सिंधी की विशेषता है। उसके हिंदी साथ की भी साथ विशेषता वहाँ, है, और साथ और साथ साथ वहाँ के साथ साथ हर साथ जगह वहाँ के समाज की भी विशेषता है जी कि जी जी उन्होंने हमें उसी रूप में एक्सेप्ट किया, ग्राह्य किया। और हमें कहीं भी ऐसा, हमारे, मैंने कहा कि हमारी गरिमा को उन्होंने मेंटेन रखा। उन्होंने कभी ये नहीं, आज जैसे मैं कहूँ कि सौभाग्य और गर्व की बात है कि यदि कोई किसी के साथ यदि सिंधी पार्टनर है तो ऐसे गर्व के साथ कहता है कि मेरा ये पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। तो हमारी जी बिजनेस में एक लॉयल्टी है, हमारा बिजनेस में एक पहचान है। तो गुजराती साथी भी यदि मेरे को किसी को कहता है कि ये मेरा सिंधी पार्टनर है, तो उसका एक यूएसपी है, क्योंकि हमारी उतनी ही क्रेडिटेबिलिटी है। तो आज मैं यदि कहूँ कि मैं इतने सालों से सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास सिंधी क्लाइंट कितने होंगे? 10, 20, 25%, बाकी 75% तो गुजरात समाज के ही होंगे। तो उनका जी उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा इस समाज के ऊपर है। बाकी जो हमको कठिनाइयां हुई, जैसे आज भी मैंने कहा कि मकान कच्चे हैं, मालिकाना हक नहीं मिले हैं, वो जो लोग आए हुए हैं वो, पर फिर भी अपनी मेहनत से उन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट किया कि आज सिंधी समाज एजुकेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज, प्रेस, सभी में, विशेष रूप से सब जगह पे सेवा कार्य में, आध्यात्म मार्ग में। मैं आपको उदाहरण दूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी आचार्य कृपलानी जी थे, मलकानी जी थे, एल के आडवाणी थे, तो उन्होंने, ऐसा नहीं है, राजनीतिक स्तर पर भी एक अपनी बहुत अच्छी छाप छोड़ी हुई है। सेवा कार्य के अंदर यदि कहें तो आज पूना उदाहरण है, दादा जेपी वासवानी, दादा टीएल वासवानी भी उतने हैं। तो आज उन्होंने जो एक समाज के जीरो से लेकर के उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, उस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। जहां तक प्रश्न बिल्कुल आपका था सीए का, तो सीए के अंदर अभी, जैसे कि कानून पुराना है, नोटिफाई एक्ट अभी हुआ और अभी नागरिकता देनी चालू की है, तो उसके अंदर सिंधी समाज जो पहले से आया हुआ है, विभाजन के पहले से, उनको तो कोई नागरिकता का प्रश्न था ही नहीं। ऐसे ही आप कहेंगे कश्मीर वाले प्रश्न में कोई नागरिकता का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो लोग बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, उनमें भी सिंधी समाज की जगह दूसरा समाज, माने सिख समाज, जैन, बौद्ध, बौद्ध तो इसमें कवर नहीं है, जैन, ये जो लोग हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं। सिंधी समाज, बंगाली, जैसे बंगाल से, बांग्लादेश से वहां का लोकल बंगाली शिफ्ट होकर के आया है। तो सिंधी समाज का जिनको नागरिकता की बात है, वो ऐसे लोग हैं जो पहले आ चुके थे पर उनकी नागरिकता अटकी हुई थी। उनको इस कानून से जो है, उनको एक नया क्या बोले कि भाई उनको एक सुखद वातावरण मिलेगा, उनकी जो एक मिलेगा लीगल, बिल्कुल। और एक हाँ एक लीगल, और उसकी पहल हो ही चुकी है। उनको बिल्कुल नागरिकता का एक चरण पूरा भी हो चुका है, गुजरात सरकार ने नागरिकता दी है। दी तो है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा कानून है जो आज के आ, अनेक वर्ष पहले नोटिफाई होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य था कि पहले नहीं हुआ था, और अभी इसका हर हर जन सामान्य को इसका स्वागत करना चाहिए कि हमारा जो प्रताड़ित जो हमारा समाज है, वो इन हमारे सराउंडिंग चारों देशों में जिस प्रकार से उनकी, आप देखिए आज हम देश में करीब 1.25 करोड़
सिंधी समाज हैं। जब जी विभाजन के समय आए थे तो लगभग 25 लाख थे। माने एवरेज 5 से 6 गुना समाज की, जैसे हमारी देश की आबादी भी उसी गति से बढ़ी। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज था, स्टेटिस्टिक्स रोज आती है, एग्जैक्ट नहीं है नंबर मेरे जी को ध्यान, बिल्कुल, वो तो सीधी सी बात है। हमारे हिंदू समाज की कि भी वहां, बात करें, अगर तो वहां पाकिस्तान उनको बांग्लादेश मजबूर उस कर हिसाब से करके बात यहाँ करें धर्म तो बहुत कम हो परिवर्तन, चुकी है। तो उनको जी उनको इस बात के लिए विवश किया जाता है कि वहां से लौट चले। आज बिल्कुल, लौट चले, अगला रहेगा। या तो फिर अपना जो धार्मिक रिलीजियस है वो आप चेंज कीजिए। ये बातें होती है। वो सिंधी समाज तो करेगा नहीं, क्योंकि हम जी तो एक ऐसे बिल्कुल। जो सिंधु भरत संस्कृति है। भरत भरत जी, क्या लगता है कि आज की मौजूदा जो सरकार है वो रेफ्यूजी के स्टेटस के बारे में और फिर जो शरणार्थी भारत देश में आता है तो उनके लिए भारत कितना महफूज है, और भारत भारत में क्या अभी परिस्थिति है? भारत क्योंकि इस सब जगह आपसे, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उस जगह से अपने जो अल्पसंख्यक भाई बहन है, हिंदू भाई बहन है, उनको वापस क्या उनको नागरिकता देने की बात है। तो उस हिसाब से भारत कितना महफूज है उनके लिए, क्योंकि वहां पे आपको धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित होना पड़ रहा था। धर्म के आधारित वहां पे हिंदू भाई बहनों को, वहां पे अगर आप रिलीजियस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वहां से निकलने के लिए फोर्स होता है। तो इस वो सारी चीज के हिसाब से इंडिया कितना महफूज है अभी? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया जी वाज ऑलवेज, मतलब पूरा जो भारतवर्ष है ये, चाहे शरारती हो या चाहिए चाहिए कोई भी हो, उसके लिए महफूज रहा है और आगे भी रहेगा। और एक इनिशिएटिव अच्छा है। और खासकर मैं अपने समाज का ये बता दूं कि अगर 35 साल हुए हैं तो नाउ जो अभी आज की सरकार है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको एड्रेस करना चाहिए हमारी बिल्कुल। ग्रीवेंसेस को, हमारे इश्यूज को। जो अत्याचार हुआ था, मैं आपको सिंपल उदाहरण दे दूं। कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आई थी, जी वो एक पिक्चर नहीं थी, वो एक इमोशन था। और तब तक आम हिंदुस्तानी को मालूम नहीं था कि कश्मीर में हुआ क्या है। मैं यहाँ अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय। आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी। मैं मैं उस समय चीफ मिनिस्टर साहब को मिला। मैंने अपने सोर्सेज से उसको टैक्स फ्री कराया। और सिनेमा घर के अंदर मैंने अपने गुजराती समाज को वहां तक ले आया। और उस दिन उनको पता चला कि भरत भाई हो या कश्मीरी समाज हो, इनके साथ क्या क्या त्रासदी हुई थी उस समय। क्या ये एक विडंबना है कि 35 साल के बाद लोगों को पता चल रहा है कि कुछ कश्मीर में हुआ था। जी मीडिया बिल्कुल। तब भी था, मीडिया तब भी मीडिया था, तब भी था, लेकिन मीडिया मीडिया तब भी तब था, भी था। यस। सरकारें भी तब भी थी, परंतु एक जो बात होती है ना कि देश में जो हालात है उसको बताने की, और देश में जो जिसे प्रताड़ित किया गया है उसके साथ खड़े होने की। तो शायद आज की गवर्नमेंट या आज की सरकार ने ये सोचा कि हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग हैं, तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनके लिए खड़ा होना ही चाहिए। एक अच्छा जी भरत जी। इनिशिएटिव है सरकार का, जो अच्छा ये ही नहीं। इनिशिएटिव है अच्छा है। लेकिन जी साइड बाय साइड उनको, जो ऑलरेडी यहाँ पे शरणार्थी शरणार्थी मैंने अभी वापस वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने देश में जी हम लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे कश्मीरी समाज हो, कश्मीरी पंडित समाज हो, इसको भी भारत सरकार को अच्छी तरह एड्रेस करना चाहिए। બિલકુલ બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, ખૂબ મહત્વના મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થઈ, અને આ ચર્ચા એટલા માટે જરૂરી હતી કારણ કે આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વનો છે. ખેર, આપણી સાથે ભરતભાઈ અને તુલસીભાઈ બંને હિન્દીમાં વાતચીત કરી, આપણે હિન્દીમાં આખો પ્રોગ્રામ વાતચીત કરી. ગુજરાતી પ્રોગ્રામ છે, પરંતુ એક એક માર્મિક માધ્યમ એ છે કે લોકો સુધી, મોટા મોટા લોકો સુધી, એક લાંબા વિસ્તાર સુધી પહોંચે. હિન્દી એ આખા દેશમાં આપણે સૌ સમજીએ છે, જાણીએ છે, અને એની સાથે સાથે ભાવના પહોંચે. એક શરણાર્થીઓની જે ભાવના હોય છે, અને સાથે સાથે ભારત દેશ એક કેટલો મહાન દેશ છે એની પણ આપણને એક તાસીર ખબર પડે છે. આજે શરણાર્થી દિવસ, વિશ્વ શરણાર્થી દિવસ જે યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે 20 જૂનના રોજ, જેની ખૂબ મહત્વતા છે. અને જે રીતે તુલસીભાઈએ વાતચીત કરી, ભરતભાઈએ વાતચીત કરી કે પરિસ્થિતિના આધારે વ્યક્તિઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. કોઈને શોખ નથી હોતો પોતાનું દેશ કે પોતાનું જગ્યા છોડવાની,
પરંતુ એ પરિસ્થિતિના આધારે જે ભારત સરકાર જે ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યો છે એ ખૂબ મહત્વની છે અને બિરદાવવા લાયક છે, જે રીતે ભરતભાઈએ વાતચીત કરી. આપણી સાથે ભરતભાઈ જોડાયા, તુલસીભાઈ જોડાયા, બંને જોડાયા, બંને ખૂબ સરસ મજાની વાતચીત કરી દર્શક મિત્રો સાથે. આપ બંનેનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. ભરતજી और तुलसीजी. थैंक यू દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલની અત્યારની રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય વસ્તુ સાથે. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.